Hello and welcome to this webinar on Grow Mutual Fund, what's in store for MFDs. Guys, we all know about Grow. It's a big name in online distribution business. So now the company has recently acquired Indiabulls Mutual Fund and started its operation with the launch of its first scheme. So while Grow is the big name in the direct plan distribution, the company wants to leverage the network of individual distributors and corporate distributors to grow its business. Hence, the company wants to work with distributors like you. So, to know more about this, let us welcome Varun Gupta, CEO of Grow Mutual Fund. Hi, Varun. Hey Nishant, thank you so much Nishant for the introduction. Yeah. There are a few things which I would like to correct during the Okay. to what you said, but let's start. I will do that during the discussion, please. Great. So, friends, I must tell you that Varun holds BTech and MTech from IIT Madras, and he has over decades of experience in across different roles. So, Varun, we know that Grow Mutual Fund has recently completed acquisition of Indiabulls Mutual Fund. So, what are your top priorities for the company? देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड निशान बता देता हूँ। तो देखिए हमने क्विकली माय इंट्रोडक्शन मोर देन बीटेक एंड एमटेक। मैं बिफोर कमिंग एट ग्रो Okay. मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर था। Mm-hmm. I used to do mutual fund distribution. I had my own individual client base, Acha. and I was a tech enabled distributor. Like I used to run my app and acquire users. Mm-hmm. And then Grow acquired, my business of mutual fund distribution. After that, we launched the MF side of business at Grow app, right? At Grow, so I understand. I come from the distributor community, so I understand distributor. I was a distributor, work very closely with the distributors all across India. देखिए इसमें ग्रो क्योंकि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन निशांत, देखिए ग्रो म्यूचुअल फंड हमने इंडिया बुल्स का एक्विजिशन कंप्लीट किया अबाउट 3 मंथ्स 4 मंथ्स बैक। Mm-hmm. फिर few months went into name change and all compliance processes, renaming the schemes etc. Right. We were also rebalancing, consolidating our portfolio. So हम लोगों ने 10 स्कीम एक्वायर किया था। We merged 2 schemes and now we are in the market with 8 schemes, 4 Mm-hmm. equity and 4 debt. Yes. एंड ये हमारा मेन फोकस था कि एक बार हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, जो कि हमने कर लिया है फ्रॉम बोथ, लार्जली फ्रॉम द फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। Mm. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमने किया, अभी हमने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया, अच्छा. राइट? तो जो हमारा पोर्टफोलियो, न्यू पोर्टफोलियो हैज स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग, एंड यू विल, आप अभी देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स भी, वाइल इट्स वेरी शॉर्ट, बट द फंड परफॉर्मेंस हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग. Mm. Value Fund is ranked number one in the last 2 months in value category. We Mm. have large cap, we have ELSS, we have aggressive hybrid. Mm. In the equity category, all of them are in quartile one, quartile two, mostly in quartile one. तो हमारा फोकस पहले ये था कि हम फाउंडेशन करेक्ट कर लें, अपने सारे प्रोसेसेस, कंप्लायंस के जो भी रिपोर्टिंग है वो सारे सेटअप कर लें, जो कि हमने कर लिया है। और अब हमने अपने एएमसी में ग्रोथ लाना शुरू करा है, वेयर द आइडिया इज टू लॉन्च न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर्स which are very tech enabled, right? So we will touch base more on it, but this is what we were doing so far at Grow AMC. तो वरुण, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है ग्रो म्यूचुअल फंड का? देखिए हमारा सिंपल थॉट प्रोसेस है। हम लोगों ने, हम जो हमारा एएमसी का एक ही विजन है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट करना है फॉर इंडियंस एंड आवर इन्वेस्टर्स। देखिए हमने जब क्योंकि मैं ग्रो में पूरा बिजनेस हेड करता था, हमने देखा कि इन्वेस्टर्स को बेसिकली एक ही चीज चाहिए होता है कि उनको सिंप्लिसिटी चाहिए होता है, और उनको चाहिए कि आप उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ बताएं। हमारे ग्रो एएमसी में हमारे 2 स्टेक होल्डर्स है। वन इज हमारे इन्वेस्टर्स, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली देन दैट, मोर इम्पोर्टेंट देन, हमारे पार्टनर्स जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एक्चुअली एंड यूजर्स को कम्युनिकेट करके उनको एजुकेट करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमारा काम है कि, सॉरी, इज द इशू और सो समवन रामजी शर्मा बोल रहे कि आवाज नहीं आ रहा है, सो आई गेस आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर. ओके। अगर आपको कुछ इश्यूज हो तो आप प्लीज चैट में बताइए। या. आई कैन, मुझे भी दिख रहा है। देखिए हमारा ग्रो म्यूचुअल फंड में हमारा यही फोकस रहेगा कि हम सिंपल ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करें,
और बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें हमारे पार्टनर्स कम्युनिटी को, ताकि वो अपने एंड इन्वेस्टर्स को क्लियरली बता पाए। दैट इज वन। सेकंड, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स इनोवेटिव हों, और जो हमने लॉन्च किया है, जो भी हम फंड्स लॉन्च करेंगे, देयर विल बी सम बिट ऑफ इनोवेशन। या तो वो प्रोडक्ट इनोवेटिव होगा और देयर विल बी एन इनोवेटिव वे टू मैनेज इट। द थर्ड एंड मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम वी अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी वेरी वेरी वेल। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इस इंटायर इन द इंटायर स्ट्रीम ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू मैनेजमेंट टू ऑपरेशंस टू कंप्लायंस टू डिस्ट्रीब्यूशन। और हम अपने स्टेक होल्डर्स और अपने पार्टनर्स को पूरा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इनेबल करना चाहेंगे, बी डिजिटल मार्केटिंग, बी प्रोडक्ट लेड कस्टमर एक्विजिशन, और कई सारी चीजें हम नए अपने पार्टनर्स के लिए लेकर आएंगे। तो ये हमारा फोकस रहेगा एज एन एएमसी, ये हमारा फिलोसफी है। अच्छा। दिस दैट क्लियर कार्तिक? सॉरी, Yes, yes, yes. निशांत, Yeah. So Gaurav, many MFDs believe that grow is the वरुण, torchbearer of. Can you hear me? या माय नेम इज वरुण। Yeah, yes, Varun. So हाँ, Varun, many MFDs believe that grow is the torchbearer of direct plans. राइट। This may discourage many MFDs to work with you. So how do you plan to deal with this perception? हाँ, तो देखिए, आपने एक क्वेश्चन अपफ्रंट पूछा और मैं इसमें बताना चाहूंगा। देखिए, ग्रो का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हमने सबसे पहले लॉन्च किया था रेगुलर म्यूचुअल फंड से। हम Hmm. लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। हमारे कुछ 15,000 कस्टमर्स भी थे और हमारे पास कुछ 45 करोड़ टाइप से ईयूएम भी था। बट देन देर आर अदर एंट्रेंस जो मार्केट्स में, पर क्योंकि हम लार्जली ऑनलाइन ही थे, और Hmm. हमने देखा कि ऑनलाइन कुछ बड़े पार्टनर्स आने लग गए, बड़े प्लेयर्स आने लग गए जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करते थे। Hmm. फिर हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी कि हम लोग एडवाइस नहीं कर पाएंगे, हम लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। क्या Hmm. हम एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे हमको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, जो एडवाइस नहीं करे, सिर्फ डीआईवाई इन्वेस्टर्स को, वो डीआईवाई इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना पाए। अब डीआईवाई इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बनाना पड़ेगा। तो हमारा ऐसा ग्रो ऐप पे भी हमारा कुछ ये नहीं है कि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेचते हैं। हम कस्टमर्स को जो चाहिए वो देते हैं। तो हमारे जो कस्टमर फोकस है वो है जो न्यू एज कस्टमर्स, जो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टेल ऑफ इंडिया, जो 500 से 1,000 रुपए, 1,500 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, जो अपने आप सिलेक्शन करना चाहते हैं कि हमको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर कहा जाता है इनको, उनके लिए हमने ग्रो ऐप बनाया है। Hmm. अभी देखिए, ग्रो एएमसी जो है, हमारा बहुत ग्रो एएमसी में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फिलॉसफी है, हमको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करना है, और हमको इंडिया में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया हमको ये लोगों के पास लेके जाना है। Hmm. मेरा पर्सनली और ग्रो एएमसी में भी हमारा बहुत फर्म बिलीफ है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी ना किसी समय में अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, एक यूजर को एडवाइस की जरूरत लगती है और उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत लगती है। उसको डिस्कस करना चाहिए कि Hmm. कब डिस्कस करना पड़ता है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। वो समय किसी की भी जर्नी में कभी भी आ सकता है, मान लीजिए कोई, और वो डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए उसके पास इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं और वो 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की एसआईपी कर रहा है और उसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000 है, तो मे बी उसको एडवाइस नहीं, वो एडवाइस के लिए नहीं प्रेफर करेगा। पर जैसे उसके पास 10 लाख रुपए हैं, वो 10,000 रुपए की एसआईपी करने लग जाता है, उसका 1, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, जो उसके लिए सब्सटेंशियल एसेट्स है, Right. तब को एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और ये मैंने अपने 15 साल के करियर में ये कई बार होते हुए देखा है, और हमने ग्रो ऐप में भी देखा है। लोग चालू करते हैं बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको लगता है कि यार हमको एडवाइस की जरूरत है, और वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वो जाते हैं एडवाइजर्स के पास, जो Hmm. उनको समझाते हैं और उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। Hmm. Hmm. हम लोग बहुत फॉर्मली बिलीव करते हैं ग्रो म्यूचुअल फंड में कि अगर इंडिया में हमको म्यूचुअल फंड की क्रांति जो लाना है, या म्यूचुअल फंड हमको जन जन तक पहुंचाना है, सबको पहुंचाना है, उसके लिए द बेस्ट वे टू डू इट इज कि हमारे पास बहुत सारे एडवाइजर्स हों, बहुत सारे ऑन ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, जो लोगों को बताएं कि म्यूचुअल फंड में कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है, और Hmm. वो सबको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। और हमारा बहुत स्ट्रांग फोकस है ग्रो म्यूचुअल फंड में, जैसा हम कहते हैं, वी से ग्रो म्यूचुअल फंड में वी से कि वी हैव ओनली वन स्टेक होल्डर, वाइल पार्टनर्स आर आवर की फोकस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर आवर की फोकस। हम इन्वेस्टर्स को दिमाग में रख के वी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, वी विल कीप दैट इन माइंड एंड विल क्रिएट प्रोडक्ट।
बट ऑल द इनोवेशन, एवरीथिंग न्यू विच वी वांट टू डू, वो हम अपने पार्टनर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनेबल करने के लिए करेंगे। ये हम एकदम क्लियर डिफरेंशिएशन बताना चाहते हैं। Okay. And Varun, why do you think that MFDs are very crucial for your growth? नहीं, हमारी ग्रोथ के लिए नहीं, देखिए ये सेकेंडरी है निशांत, कि हमारी ग्रोथ के लिए एमएफडीज हैं या ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है या वेल्थ प्लेटफॉर्म्स है, ये सब ये थॉट प्रोसेस इज नॉट, इज सेकेंडरी फॉर अस। Hmm. वी बिलीव कि एमएफडीज आर वेरी क्रिटिकल फॉर कस्टमर्स। Hmm. देखिए हम लोग सब किसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। आप जो एएमसी बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी आप इन्वेस्टर के लिए बना रहे हैं। Right. डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं, वो भी इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, राइट। उन इन्वेस्टर्स आगे बढ़ेगा तो पूरी हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। Right. तो हमारे लिए ये, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। Hmm. बिल्कुल है इंपॉर्टेंट, बट ये हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे दिमाग में ये है कि इन्वेस्टर्स को, जो एंड इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जितना एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर है जो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, डीआईवाई हैं, उनके लिए जितना डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ने कुछ किया है, उतना ही एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक सेगमेंट ऑफ यूजर्स के लिए काफी तरक्की करी है, उनको काफी आगे पहुंचाया है, उनको काफी गाइडेंस दिया है। वो हम समझते हैं और उन्हीं सेगमेंट ऑफ लोगों के साथ चाहते हैं कि वो, और ये कम्युनिटी और आगे बढ़े और कई और लोगों को एडवाइस कर सके। ये हमारा एम है और यही, इसी पे हम ग्रो म्यूचुअल फंड के लिए या तो प्रोडक्ट बनाएंगे या उनके लिए काम करेंगे। Great. So friends, you can use chat section to post your questions. Okay. And कुछ क्वेश्चंस आए हैं निशांत, हम लोग, आपको चाहिए तो हम अभी से इंट्रोड्यूस one कर is देते related to Fed rate hike. So I think it may not be relevant for this forum. If you want to comment, you can take it. हैं। नो नो, लेट्स कमेंट ऑन एवरी क्वेश्चन प्लीज। Okay. So Sasi, very good question. Your guess is as good as mine. I would not. There are, of course, speculations here, but we will not be able to. मतलब it is expected. There are, market is divided in two parts. It might happen. It might not happen. We have not taken any position versus that. We of course have our thought process, but we have not taken this into speculation, and I don't think मतलब we don't have a point of view in terms of ki what will Fed do, right? What, when it will happen, depending on how the market will, we'll take a call. Uh, my age is around 43. I want to create retirement purpose. Right. Nishant, do you want to go ahead or what do you want to do? Do you want So to? I think we should take this question. What are unique aspect that differentiate Grow Mutual Fund from other fund houses? Acha, this is the second question. Yes. Yeah, so that's a good question, Bhupati and Bhupti ji. And हम लोग देखिए कई सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जो लाना चाहेंगे, जो ग्रो म्यूचुअल फंड को डिफरेंशिएट करेगी बाकी एएमसी से। और ये देखिए काफी डिपेंड करेगा हमारा जो टेक्नोलॉजी जिसका हम उपयोग करेंगे और किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच विल ब्रिंग टू द मार्केट, टू द टू द, सॉरी निशान, या व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी ब्रिंग टू द मार्केट, सो दैट आप अपने इन्वेस्टर्स को बता सकें, Hmm. राइट। सो द फर्स्ट थिंग, जैसे वी विल सेंड यू दिस, बट जैसे आई डोंट नो इफ आई कैन प्रेजेंट माय स्क्रीन, बट जैसे सम ऑफ द थिंग्स विच जो हम लोग लेकर आएंगे, जो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे, जैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, Hmm. वी आर वर्किंग ऑन इट, विल ब्रिंग अ वेरी सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपका बिजनेस मैनेज करने में, आपको कस्टमर्स मैनेज करने में आपका हेल्प कर सके। Hmm. We will launch a very very good app which will help you and your investors to basically manage your portfolio, and that will also help you upskill. We'll do a continuous learning session. Hmm. We'll use the new technologies like AI, which will help you create content, new age content, right? Deep fake, etc., which you can then share with your customers, and it will be, we are working on it very deeply. We will also work on creating more and more content, which is like give you direct customer insights, market insights at a click of a button, Hmm. right? We are also looking at creating CRMs and digital marketing automation. So, Hmm. right, so from a business management perspective, we are basically looking at creating a lot of solutions using technology. Second, from a product perspective, see, we are a new age AMC, so we will look at more innovative products. We'll look at more new age products. We will of course go with the conservative diversified funds also at the right time. But जैसे हमारा जो पहला हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड, राइट। इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है Right. जिसने
राइट। तो हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी वी विल थिंक अबाउट लॉन्चिंग, जो आप अपने एंड इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। सो these आर द फ्यू थिंग्स, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज एंड यू विल लर्न विद अस कि हम लोग कई सारे इनोवेशन, डिजिटल एएमसी, टेक्नोलॉजी लेड एएमसी कैसे बन के आपके साथ क्लोजली काम कर सकते हैं। So Sasi wants to understand that how to overcome direct mutual fund. So एक मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि कुछ उनके क्लाइंट्स जो होते हैं वो उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, एजुकेट करते हैं, व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन दे डू डायरेक्ट। तो राइट। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि वो इतना उस एजुकेट करने में एफर्ट लगाया, लेकिन उनको लॉस हो जाता है इसके कारण। तो ये सिचुएशन को कैसे वो लोग ओवरकम कर सकते हैं, वरुण? राइट, देखिए इसमें हमें जो लगता है ये दोनों टू साइडेड है। हम्म। हमको जो मैंने देखा है वो प्राइमरली ऐसा हुआ है कि यस, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी करना शुरू किया है। पर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के होने के कारण क्या हुआ है कि लोगों को ऑल ओवर इंडिया में म्यूचुअल फंड की जानकारी बहुत हुई है। मुझे अभी से याद है, अभी से 8 साल पहले हम जब किसी को म्यूचुअल फंड बताया करते थे, हम्म। तो म्यूचुअल फंड काफी पुश प्रोडक्ट हुआ करता था। लाइक लोगों को बताना पड़ता था और तब लोग जाके उसको खरीदते थे काफी। एक एसआईपी चालू करने में बहुत Correct. समझाना पड़ता था। अभी सबको पता है कि हम्म। म्यूचुअल फंड क्या है, तो मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, कैटेगरी बहुत बड़ी हुई है। जैसा आप बोल रहे हैं कि लोगों को आप समझाते हैं और फिर वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसे ही अपोजिट भी होता है। हम्म। लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्ट करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो हमको एडवाइस की जरूरत है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आके, एडवाइजर्स के पास आके जानकारी लेते हैं। हम्म। तो देखिए ये दोनों साइड का हमेशा ट्रू रहेगा। वो हमको क्या लगता है कि कस्टमर्स के पास तो सारे ऑप्शन रहेंगे ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको राइट कस्टमर्स को अगर आपने राइट कस्टमर को राइट टाइम पे एडवाइस दिया, तो कस्टमर आपके साथ हमेशा रहेगा। और ये हमने कई बार देखा है, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत सक्सेसफुल अपना बिजनेस बनाया है, अपना खुद का Correct. ऐप बनाया है। और वो उन्होंने कस्टमर स्टे विद देम, क्योंकि कस्टमर्स को भी थोड़े टाइम बाद करके पता चलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट इजी। राइट, हम्म। अपना खुद का मैनेज करना इज नॉट इजी। लाइक अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करना है, और अगर आपको एक सब्सटेंशियल पैसा आपको डालना है, तो आपको एडवाइस की जरूरत है, आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हम्म। इसलिए हमने देखा है कि कस्टमर्स आते हैं और एडवाइजर्स के साथ भी ऑपरेट करते हैं। और वो मुझे हमें लगता है कि बहुत अच्छा, दैट इज द राइट वे टू डू इट। राइट, क्योंकि जैसे मैं भी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए आई ऑल्सो टेक एडवाइस। राइट, बिकॉज मुझे भी लगता है कि मैं भी मार्केट ट्रैक नहीं कर सकता हूँ डे टू डे। राइट, एंड देर इज समवन जिसको मुझसे ज्यादा पता है, जो एक्चुअली डेली यही करता है। राइट, सो दैट इज वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। Okay. So, talking about distributor partnership, why should distributors empanel with Grow Mutual Fund, and what can they expect from this partnership, Varun? ठीक है निशान, मैंने अभी यही सारा बताया। देखिए हमारा वी विल डू अ लॉट ऑफ न्यू एज इनोवेशन, Hmm. जो हम आपको आज, जिससे आपका बिजनेस बेटर हो सके, आप अपने कस्टमर्स को बेटर मैनेज कर सकें, आपके कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। हम अपने जो प्रोडक्ट्स लेके आएंगे वो बहुत न्यू एज होंगे, तो आपके कस्टमर्स को पता पता रहेगा, क्योंकि हम मार्केटिंग भी करेंगे, हम बताएंगे कि हमारे ग्रो म्यूचुअल फंड आया है, ये प्रोडक्ट लेके आया है। आपके कस्टमर्स भी आपके पास आके मांगे, हो सकता है मांगे, तो आप भी वो पैनल रह के हमारे साथ एक्टिव रहिए, ताकि वो कस्टमर्स जब मांगे देन यू हैव द प्रोडक्ट, और आप भी खुद बताइए। इसे जो विद एग्जांपल, जो इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है, ये बहुत नया इनोवेशन है, ये किसी ने अभी तक नहीं किया है। इसी टाइप के हम अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे। तो और आपके लिए और हम लोग बहुत कंसिस्टेंटली आपके लिए काम करेंगे। देखिए हमने जो अपने ओवरऑल बिजनेस में सीखा है कि अगर आपको अपना एंड कस्टमर बहुत क्लियर होता है, और Hmm. आप उसके लिए कंप्लीटली काम कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, सो देन देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू एड जो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने मेन ग्रो ऐप में डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए किया, और ग्रो म्यूचुअल फंड में हम अपने पार्टनर्स के लिए करना चाहते हैं। Hmm. हमारा पूरा फोकस इधर ही रहेगा। और आप भी जैसे हमारे साथ ग्रो होना चाहते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इम्पेनल करके चालू कर सकते हैं। Yes. तो आपको प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बताया कि मच बियॉन्ड ट्रांजैक्शन है, आप बहुत कुछ इनोवेटिव दे रहे हैं, विच इज आई मीन which may help many distributors to, I mean, grow their business. So आपने अभी जिक्र किया ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का। सो जी, ये फंड आपने क्यों लॉन्च किया, और आप इसके इंडेक्स कंपोजिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
जी जी। तो देखिए निफ्टी का देखिए आपके पास कई सारे टाइप के इंडेक्स फंड्स होते हैं इंडिया में। हम लोग सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स की अगर बात करें तो एक निफ्टी 50 होता है जो टॉप 50 लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। फिर एक मिड कैप होता है जो 150 टाइप्स कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। हमने देखा कि अभी क्या हो रहा है इस समय में कि कई सारे हमारे जो एंड इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप के पीछे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक हद तक अब मार्केट मतलब जो अभी प्राइसिंग है मार्केट का जहाँ पर है, अभी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क हो सकता है। हम्म। हमने हम लोग एक फंड ऐसा लॉन्च करना चाहते थे जो ओवरऑल मार्केट का एक्सपोजर दे रहा है हम्म। एंड इन्वेस्टर को अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स। तो हम्म। ये एक इकलौता ऐसा इंडेक्स फंड है जो लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है एंड माइक्रो हम्म। कैप में भी इन्वेस्ट करता है। राइट, अच्छा। दिस इन्वेस्ट इन टोटल 750 कंपनीज इन इंडिया। और ये 96% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट उसमें इन्वेस्ट करता है, राइट, वर्सेस लार्ज कैप जो सिर्फ 49% है। अच्छा। ये हमारे लिए हमको लगता है कि दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। हम्म। अगर आप देखें इंडिया में कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कभी लार्ज कैप में ग्रोथ आया है, कभी मिड कैप में, अक्रॉस सेक्टर्स आप देखें तो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट हम्म। टाइप पे ग्रोथ आया है। दिस इज हम्म। अ ट्रू इंडेक्स फंड जो सारे सेक्टर्स कवर करता है। इट कवर्स 22 सेक्टर्स, इट इन्वेस्ट अक्रॉस ऑल लार्ज कैप। सो ये आपको एक लो वॉलेटाइल भी रहता है ये, क्योंकि इसमें लार्ज कैप इज द लार्जेस्ट पोर्शन, अराउंड 72% इज लार्ज कैप का कंपोजिशन। तो हम्म। low volatility of large cap and upside potential of smaller market size company also this fund has, right? And this is a very unique fund, gives the overall market exposure. हम्म। And so we believe that if you want to grow with India, this is the right fund to invest in. And we inherently believe that this is better than Nifty 50, क्योंकि हम्म। हमने अगर निफ्टी 50 में देखा हमने तो इसका अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, इट हैज गिवन बेटर रिटर्न्स देन निफ्टी 50। And most importantly, it has given better returns by maintaining lesser volatility. Risk adjusted returns बोलते हैं हम, शार्पे रेशियो मेजर करते हैं। तो हम्म। शार्पे रेशियो हमने जो देखा, इट इज ऑलवेज बेटर देन निफ्टी 50 अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड्स। दैट इज अच्छा। व्हाई वी बिलीव दैट दिस इज अ ग्रेट फंड फॉर इन्वेस्टर्स। हम्म। And you should tell your investors, tell your end investors about it. We believe also, जो मैंने अभी बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम बिलीव करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कस्टमर की जर्नी में, फाइनेंशियल जर्नी में। उसको ध्यान में रखते हुए हम जो भी फंड लॉन्च करेंगे, हम उसमें एक काफी डिसेंट मार्केट का कमीशन स्ट्रक्चर भी रखेंगे। और जबकि ये इंडेक्स फंड है तब भी हमने इसमें काफी अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर रखने की कोशिश करी है। और जो आप हमसे प्लीज रीच आउट करिए और हम आपको समझाएंगे कि हमने क्या कमीशन स्ट्रक्चर रखा है। So, as you mentioned, Varun, that the index has exposure to 750 stocks. So, don't you think it will be too much of diversification? देखिए निशांत, डाइवर्सिफिकेशन तब देखा जाता है। देखिए यू आर राइट, यू आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग कि देखिए डाइवर्सिफाइड क्या होता है आपको। देखिए इंडेक्स फंड में आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, वो भी 50 स्टॉक्स, राइट, 50 स्टॉक्स इज ऑल्सो हाईली डाइवर्सिफाइड, Yes. राइट। आप इंडेक्स में यू जस्ट लुक एट कि यार दिस इज अ इंडेक्स विच आई एम इन्वेस्टिंग इन, व्हाट डज दिस इंडेक्स रिप्रेजेंट। जैसे इधर रीबैलेंसिंग ऑफ द इंडेक्स कीप्स हैपनिंग, राइट, स्कीम्स कीप stocks keep going on coming in, and there are some stocks which have moved from mid cap to large cap, from small cap to mid cap over a period of time. There Hmm. is अगर आपको सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर करना है एंड नॉट वरिंग अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन, राइट, आपको ये नहीं सोचना है कि 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। Hmm. आपको देखना है कि यार ये एक इंडेक्स है जो इंडिया का पूरा मार्केट को कैप्चर कर रहा है। अगर मुझे ऐसे एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। आप अगर खुद स्टॉक्स मैनेज करना चाहेंगे तो आप 10 स्टॉक से 12 स्टॉक से ऊपर आपको नहीं लेने का वो होता है। आप म्यूचुअल फंड्स भी लेने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको मैक्स आपको 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर उनमें भी आप देखेंगे तो बहुत कॉमन स्टॉक्स होल्डिंग होता है। तो Right. दिस वन फंड दिस हैज लाइक अ वेरी वाइड रेंज ऑफ stocks available, and this is the true reflection of India's economy. So don't go with diversification, don't confuse it with anything. The objective of this fund is pure India's economic growth. That's where it ends. So, you are indirectly investing in India. आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमृत काल में बेसिकली। You are directly investing in India. This is the India का economy is the market capitalization of this stock, right? Of this index fund. सो वरुण, एक्चुअली बहुत सारे एमएफडीज जो हैं वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है इंडिया में।
So why करेक्ट। should they opt for passively managed multi-cap fund? देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये मल्टी कैप से आप कंपेयर करें। अगर आप स्मॉल कैप से भी आप कंपेयर कर सकते हैं इस फंड को, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कैप है। तो हम्म, कंपैरिजन टू एनी, दिस आर, वी बिलीव दिस आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंड सर्विंग टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। राइट, हम्म, मल्टी कैप फंड वी, हम लोग भी अपना एक्टिवली मैनेज मल्टी कैप फंड लॉन्च करेंगे वेरी सून। लॉन्च हम्म, करेंगे, फ्लेक्सी भी लॉन्च करेंगे। और उन फंड्स का थॉट प्रोसेस अलग होता है। राइट, दिस आर ऑल एक्टिवली मैनेज फंड, जिसमें फंड मैनेजर एक थॉट प्रोसेस के साथ एक्टिवली कॉल ले रहा है। जैसे हमारे हम लोग रिस्क मैनेज करेंगे, बट देयर विल बी सम फंड जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेगा मल्टी कैप में, और वो लोग हर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट साइकिल में डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्म करेंगे। राइट, पर इधर ऑब्जेक्टिव एकदम अलग है। देखिए, एक्टिव वर्सेस इंडेक्स, आपको ऐसा नहीं देखना है कि हम एक्टिव में इन्वेस्ट करें कि पैसिव में इन्वेस्ट करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम अलग होता है। इधर ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिया की, दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। आपको किसी भी एक्टिव फंड या किसी भी पैसिव फंड में ऐसा नहीं मिलेगा जो सारे ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया की ग्रोथ के साथ वो ग्रो होता जा रहा है। वो हम्म, सब अपना एक्टिव कॉल्स लेंगे। और उधर भी इन्वेस्ट करना हम बिल्कुल सही है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू see that this fund will outperform or this fund is good for me. बट वी बिलीव कि ये एक फंड है जिस जो हर किसी के पास थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए मार्केट में। एवरी इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन, जो भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता था या लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करता था, उनको थोड़ा अलोकेशन इस फंड में भी रखना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि उनका कंफर्ट इस फंड के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो द बेंचमार्क इज नॉट एक्टिव मल्टी कैप फॉर अस, बेंचमार्क इज निफ्टी 50 और एनी लार्ज कैप फंड। दैट इज हाउ वी लुक एट दिस फंड। तो वरुण कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो बिल्कुल। विकास बोल रहे हैं कि जैसे ग्रो म्यूचुअल फंड में वो अपने क्लाइंट को लाते हैं, तो ग्रो ग्रो प्लेटफॉर्म में वो ना चला जाए, इट्स अ मेजर रिस्क। बट लेकिन ऐसे डेटा शेयरिंग नहीं होता है विकास, कंप्लायंस होता है, दो अलग अलग कंपनीज हैं। तो आप कुछ, इफ यू वांट टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट। या नहीं, सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल होता। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं भी एमएफडी था, और मुझे भी याद है जब मैं प्लेटफॉर्म के साथ, मुझे बैंक्स के साथ इशू होता था, क्योंकि बैंक्स अपना खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और खुद भी प्लेटफॉर्म एएमसी भी हैं। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि वहाँ पे डेटा सेफ है। बेसिकली दिस आर टू कंप्लीटली डिफरेंट, हैवी हेविली सेबी रेगुलेटेड, कि आप कुछ भी डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स का डायरेक्टली, हमें भी जंबल्ड होके आता है। तो देर इज नो डेटा शेयरिंग विच विल हैपन। ग्रो ऐप अपनी अलग ट्रेजेक्ट्री पे है, जो डायरेक्टली कस्टमर्स को एक्वायर करता है। जो डीआईवाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं वहाँ पे, जो स्टॉक साइड के इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं वहाँ पे। इधर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम आपको एक सिंपल प्रोडक्ट्स बना के दें, सिंपल स्कीम्स बना के दें, जो आप अपने एंड कस्टमर्स को दे पाएं। वो डायरेक्टली डेटा आरटीएस में रहेगा, हमारे पास भी जंबल होके ही आता है वो डेटा। हम जो भी मार्केटिंग वगैरह करेंगे हम आरटीएस के थ्रू ही कर पाएंगे। तो उधर भी देर इज नो डेटा शेयरिंग विच विल हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर नॉट, मतलब at an AMC level we are very very clear that we want to keep all the data very safe, and we will, what we'll do is कि हम आरटीएस के साथ मिलकर इस पे काम करेंगे कि डेटा को और सेफ कैसे बनाएं। जैसे हम लोग अपने एंड पे वी हैव अ वेरी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, और वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ग्रो म्यूचुअल फंड में। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड विद। ऑल्सो प्लीज सी अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, दैट इज डेफिनेटली समथिंग विच आई कैन कम एंड टॉक एंड एनीवन विल कम एंड से कि यार नहीं करेंगे। पर आप हमको देखिए, आप थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करिए, और आपको खुद भी रियलाइज होगा कि यस, वी आर ट्रू टू द वर्ड्स व्हिच वी आर सेइंग एंड वी विल कंसिस्टेंटली जस्ट एक्ट ऑन दैट। तो वरुण, जॉन जकरिया बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन, अच्छा, तो आपके प्लेटफॉर्म में मतलब, हाँ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमएफयू, के फिनटेक एंड अदर्स, बीएसई। अपार्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन आप बहुत कुछ दे रहे हैं, राइट? करेक्ट। या नहीं, सो मैं इस सवाल, आई थिंक विल देयर बी टू हैंडल अदर देन करंट प्लेटफॉर्म्स लाइक। हाँ जी, तो जॉन जी, तो हम लोग हमारा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अभी, और हम उसको काफी एडवांस प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि आप अपने कस्टमर्स के जितने भी चीजें हैं आप उसी प्लेटफॉर्म पे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर्स का आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उनका अपना ब्रोकरेज मैनेज कर सकते हैं, उनको ट्रांजेक्शन्स इनिशिएट कर सकते हैं। अभी हमारा प्लेटफॉर्म अंडर प्रोसेस है।
हम लोग होप कर रहे थे कि हम सितंबर एंड तक लॉन्च कर सकें, बट बिकॉज ऑफ दिस एनएफओ हमारा थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम्म, हम लोग जल्दी से जल्दी वो प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आएंगे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि टेक्नोलॉजी साइड में हम जब भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तब हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम एक बेस प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और हम अपने कस्टमर से कंटिन्यूसली फीडबैक लेके हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उस प्रोडक्ट को बेस्ट इन वर्ल्ड कैसे बनाए, बेस्ट इन क्लास। तो इधर भी जो हम डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो आपके पास जल्दी अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म, उसमें हम लॉन्च करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको कंसिस्टेंटली फीडबैक देते रहिए। आप बताते रहिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हम बहुत हैप्पी रहेंगे वो सारे सजेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म में विल यू फैसिलिटेट केवाईसी, मॉडिफिकेशन ऑफ केवाईसी, फ्रेश केवाईसी? यस, अच्छा। आप न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन अभी शायद हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे फर्स्ट गो में, पर वर्जन 2 V2 जब हम लॉन्च करेंगे तब हम उसमें कर पाएंगे। पर आप न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग आप बिल्कुल कर पाएंगे इसमें। अच्छा, एक और पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ वरुण, कि ये जैसे ये ट्रांजैक्शन वो मल्टीपल एएमसी में आप फैसिलिटेट करेंगे कि सिर्फ ग्रो में करेंगे? क्योंकि ये एक नहीं, हम बहुत तो बड़ा ग्रो। चैलेंज है। हाँ हाँ, नहीं मैं समझता हूँ इस बात को निशान। देखिए, हम लोग अभी इस बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, और कि एज अ एएमसी क्या हम सारे एएमसीज में ट्रांजैक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, एएमसीज का रेगुलेशन है कि वो उसके एएमसी के कोर बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर हम थोड़ा रेगुलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमको ये फीडबैक मिल रहा है हमारी पार्टनर कम्युनिटी से कि हमें आप एक प्लेटफॉर्म दीजिए जो हम्म, सारे एएमसीज में ट्रांजैक्ट कर सके, तो हम बहुत वी विल बी वेरी हैप्पी टू बिल्ड इट फॉर देम। पर हम लोग पहले सिर्फ ग्रो एएमसी के लिए लॉन्च करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम्म, हमें क्या फीडबैक मिल रहा है और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो एक क्वेश्चन है कामेश्वर प्रसाद जी का। सो हाउ वुड यू एंश्योर दैट एमएफडीज हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? एनी राइट। प्लान on apps for MFDs? Yes. Payment options like UPI, I guess it would be there. No need of uploading cancel. Okay. So what would be the process? I mean, ease of doing business क्या होगा जो अभी नहीं, अभी प्रॉब्लम है, वो कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? कामेश्वर जी, देखिए कुछ सवालों का जवाब मैंने ऑलरेडी एड्रेस किया था, पर मैं और आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में जाके। देखिए, हमने जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी से जो पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हमने बात करा, तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई कि ये आपको सॉल्व करना ही चाहिए। जैसे जो इतना बैक एंड वर्क होता है, जो 40 to 50% ऑफ टाइम आपका जाता है कस्टमर्स का फोलियो मेंटेन करने के लिए, उनका एनएफटीज करने के लिए, उनका नॉमिनी वगैरह ऐड करने के लिए, वो सब ऑल जो भी है उन सब पे हम बहुत कोशिश करेंगे कि उसको एकदम सिंप्लीफाई कर सकें आपके लिए। और उसका जो भी डेटा एडिशन है वो हम उसको ऐसा नहीं हो कि आपको 10 जगह जाके अपडेट करना पड़ रहा है, हम एक जगह से करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ट्रांजेक्शन, जैसे आपने यूपीआई का एग्जांपल लिया, ऐसे कई सारी जगह जहां पे भी आपको ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना है, हम कई तरह के इनोवेशन लाने का सोच रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट एएमसी हो जो यूपीआई बेस्ड ऑटो पे लेकर आए, यूपीआई बेस्ड मैंडेट लेकर आए। जैसे अभी क्या होता है, आपको मैंडेट देना होता है तो आपको साइन करा के सबमिट करना पड़ता है, जिसमें 30-40% फेलियर रेट है। और वो राइट। हम समझते हैं क्योंकि हम खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर थे। राइट, तो अभी हम यूपीआई बेस्ड ऑटो पे लाना चाहते हैं, जिसमें फेलियर रेट बहुत लो है, और उसमें आप कितना भी आप डेली एसआईपी करा सकते हैं अपने यूजर को। और इस तरह के हम कई इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं जो कि हम स्लोली स्लोली मार्केट में लेकर आते रहेंगे। सो विकास जी जानना चाहते हैं वरुण जी। और एक एक सॉरी, इस पॉइंट पे ये भी बताऊं कि हाँ, कैंसिल चेक का हम बिल्कुल हटा देंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने जो बनाया है वैसा की वैसा एक्सपीरियंस रहेगा। देयर विल बी नो अपलोडिंग ऑफ कैंसिल चेक, उसको बोलते हैं बैंक वेरिफिकेशन। और हम इसमें दो तरीके से बैंक वेरिफिकेशन करेंगे, हम एक पेनी ड्रॉप और रिवर्स पेनी ड्रॉप। कि यूजर के अकाउंट में 1 रुपए जाएगा और उसका हमको पता चल जाएगा, और रिवर्स पेनी ड्रॉप की यूजर 1 रुपए इनिशिएट करेगा और हमको उसका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। तो वो सारे जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, न्यू एज वेज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या वरुण, विकास जानना चाहते हैं कि वो ऑलरेडी कुछ ऐप यूज कर रहे हैं, तो हाँ। वो क्यों ग्रो का ऐप यूज करें? आप देखिए, अभी विकास जी, हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे आप तब ज़्यादा आप अच्छे से बेंचमार्क कर पाएंगे। यूजुअली देखिए, मैं जो ये बताना चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छे से क्या समझ में आता है, टेक्नोलॉजी हमें बहुत अच्छे से आता है, जो हमारा कोर है, और और अभी एएमसी में हम फंड मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो जब आप देखेंगे, जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप अपना प्लीज कंपेयर करके देखिए कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पा रही है कि नहीं।
क्या वो आपके करंट प्रोडक्ट से बेटर है, और जब आपको लगे कि सही है तभी आप शिफ्ट करिए, नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay. Amol Deshmukh wants to understand 10-year treasury yield and Fed policy rate high rate last converged like this right before the subprime crash. Does it impact? So what will be the impact of Fed rate hike on Indian market? He wants to I understand. will not be the right person to answer this, Nishan. Amolji, sorry, I am not a fund manager. We will have some point of views on this, but and I of course have my point of view. But I don't think this is the right forum for it, and well, I would like to refrain from sharing my point of view, please. UPI. Okay, so one of the panelists is saying that UPI is already there. I mean, so what is the limit in the UPI autopay, Varun? I think it's 15,000 per transaction or something like that. Yeah. Per transaction. 15,000 का लिमिट है जो अभी इंक्रीज होने वाला है, Uh-huh. बट पर डेबिट आई थिंक 15,000 का लिमिट है। Yeah, yeah. पर Okay. वो चेंज होता रहता है, पहले वो 5,000 था, फिर 15 हो गया, अभी फिर बढ़ गया होगा, वो चेक करना पड़ेगा लेटेस्ट क्या है, Hmm. बट इट इज सपोज टू इंक्रीज ओनली फ्रॉम हियर। Okay. So Varun, so since we are running out of time, one हाँ, last question I would like to ask you that so could you take us through the future plan of Grow Mutual Fund and what do they mean for distributors? राइट। तो देखिए हमने जैसे कई सारी जो हमने कई तरीके से कवर किया है वैसे निशान इसको, पर देखिए हम लोग यही हमारा बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है, हम लोग हर चीज को सिंप्लीफाई करके सोचते हैं, हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एएमसी रहेंगे। हम लोग हर चीज में वी विल सी की टेक्नोलॉजी का लेयर बना के हाउ डू वी क्रिएट इजीनेस फॉर अवर पार्टनर्स, हाउ डू वी क्रिएट प्रोडक्ट्स विच आर वेरी इनोवेटिव, जैसे हमने अभी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड लेकर आए, इसी तरह से हम कैसे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए बोथ ऑन एक्टिव साइड एंड पैसिव साइड, ये हम सोचेंगे। एंड कैसे हम अपने पार्टनर्स को और वैल्यू ऐड करते रहें यूजिंग our understanding of their business, our direct customer connect, etc., etc. So this is what broadly which we will continue to focus on. Uh, मैं एक मिनट और देख लेता हूँ। हाँ, so this is what broadly we are saying. We'll also do a lot of distributor outreach to basically and once our product is ready with our NFOs and everything, so that people are educated, right? And we will keep on creating new and innovative stuff. जैसे अभी हमारी टीम ने एक यहाँ पे एक मार्केट वीडियो पोस्ट किया है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का और आप ये देखेंगे कि दिस वेरी इजीली एक्सप्लेन्स व्हाट दिस फंड इज अबाउट, राइट? और हमको मार्केटिंग और ये बहुत इजीली समझ में आता है कि हम कैसे इजीली कम्युनिकेट करें अपने एंड इन्वेस्टर को, और इसी टाइप का कंटेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए, जो पार्टनर्स अपने एंड इन्वेस्टर्स को दिखा के इजीली समझा सकें। तो दिस इज व्हाट आवर थॉट प्रोसेस इज, and over a period of time we want to keep on executing on it very with a lot of rigor. Okay, so two more questions has come if you want to take. हाँ, Can you please repeat your thought on being able to provide distribution platform? So so the thing that will you provide transaction facility across all AMC and मैं वो रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इससे पहले सचिन गोका जी का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट एग्जिट। hmm, तो सचिन जी, कुछ एग्जिट लोड नहीं है इस फंड में। हमने एग्जिट लोड कम्प्लीटली जीरो रखा है, तो आपके इन्वेस्टर्स जब भी इन्वेस्ट करना चाहें कभी भी इन्वेस्ट करके कभी भी विदाउट एग्जिट लोड विड्रॉ कर सकते हैं। आपका अभिजीत जी, आपका जो क्वेश्चन है ऑन बीइंग एबल टू प्रोवाइड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, देखिए अभिजीत जी, अभी हम लोग लॉन्च करेंगे, जब पहला लॉन्च करेंगे हम ग्रो एएमसी के साथ लॉन्च करेंगे, और फिर हम अपने पार्टनर्स आपके जैसे जो हमारा यूज करना शुरू करेंगे उनसे हम फीडबैक लेंगे कि क्या आपको चाहिए बाकी एएमसीज का भी सपोर्ट। पहले हम चाहेंगे कि जो बेसिक सपोर्ट है, ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स, ट्रांजैक्शन इनिशिएशन, यूपीआई ऑटो पे, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, कस्टमर्स का फोलियो मैनेजमेंट, सब चीजें आपका हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन आई से ओवर विद इन 6 to 9 months, अगर आपको लगता है कि हम बाकी एएमसीज का भी सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो वो भी हम देखेंगे कि हम कैसे करना शुरू कर सकते हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस है अभी। हम आपको क्या, मैं अभी ये गारंटी नहीं कर सकता कि हम आपको सब कुछ डे वन पे देंगे। मैं आपको क्या 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि हम लोग आपको बहुत क्लोजली सुनेंगे।
आपको जो बोलना है आप प्लीज बोलिए, आपको जो फीडबैक देना हो आप प्लीज दीजिए। हम हमारे आवर ईयर्स विल ऑलवेज बी टू द ग्राउंड, we will listen to you, and we will be very happy to take your feedback and improve our systems, our processes, anything which is in our control, in our thought process, so that we can be the best partner for you as you also grow your business. That is what our intention will be. यस सचिन, ये यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में जल्दी लाइव हो जाएगा और हमारे वेबसाइट पे भी लाइव हो जाएगा. So with that, so we have come to an end to this interesting session. Thank you so much, Varun, for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत दिल से बात की. Hey, thank you so much, Nishant. It was a pleasure. I always love interacting with my fellow distributors. And it was a pleasure being in this session and answer all the questions. And thank you, Sachin, Abhijit ji, and everyone who asked this question and made us think more. And जैसा मैंने कहा, मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि कैसे हम आपके साथ डीपली पार्टनर कर सकें, और हम आपके साथ डीपली पार्टनर कर सकें, और हम लोग साथ में ग्रो कर सकें, और यही हम आपके साथ लॉन्ग टर्म में भी करते रहना चाहेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. Yeah, all the best, Varun. And finally, I thank each one of you for being such a wonderful audience. Have a great day at work, guys. Bye. थैंक यू निशान. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.